Now, the polar form of a complex number. Let z be a non-zero complex number. Then we can write z is equals to r cos theta plus iota sin theta, where r is mod of z and theta is the argument of z. For instance, minus 1 plus iota is equals to root under cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4, and minus 1 minus iota, that is the it is the conjugate of minus 1 plus iota, is equals to root under cos minus 3 pi by 4 plus sine minus 3 by 3 pi by 4. In fact, if z is equals to r cos theta plus I sin theta, then z is also given by z is equals to r cos 2k pi plus theta plus I sin 2k pi plus theta, where k is an integer. So यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम z का जो आर्ग्यूमेंट है, z को हम ये भी z हमारा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो हम वही z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं r cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट यहाँ दोनों का सेम होगा. नाउ कम टू यूरल फार्मूला. यूरल फार्मूला सेज दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज डिनोटेड बाय e to the power I theta or cis theta, that is e to the power I theta is equals to cis theta is equals to cos theta plus iota sin theta. Some important results involving argument is, if z, z1 and z2 are the complex number, then argument of conjugate of z is equals to minus of argument of z. And now second property is, if argument of z1 z2 is equals to argument of z1 plus z2 plus argument of z2. In fact, argument of z1 z2 is equals to argument of z1 plus argument of z2 plus 2k pi, where k, यहाँ पे k का वैल्यू क्या होगा, वो जीरो होगा अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस पाई और पाई के बीच में होगा. वो 1 होगा इफ़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 लाइज बिटवीन माइनस 2 पाई एंड माइनस पाई, एंड वो माइनस के का वैल्यू माइनस 1 होगा जब आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस पाई और 2 पाई के बीच में लाई करे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड or point third, that is argument of z1 z1 conjugate of z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2, क्योंकि हमने पढ़ा था argument of conjugate of z is equals to minus of argument of conjugate of z, minus of argument of z. उसी से अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और कॉन्जुगेट ऑफ z2 है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हो जाएगा और माइनस में आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, जो कि ये प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. Argument of z1 by z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2. In fact, argument of z1 by z2 is equals to argument of z1 minus argument of z2 plus 2k pi, where k is defined as in second with plus sign between argument of z1 and argument of z2 replaced by. ओके, यहाँ पे फिफ्थ प्रॉपर्टी है, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 एंड माइनस 2 इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2. यहाँ पे अगर बोल रहा है अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो वो इक्वल हो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 पाई बाई 2 के बराबर होगा. And if mod of z1 plus z2 is equals to mod of z1 plus mod of z2, so implies that argument of z1 is equals to argument of z2. Okay, if z1 is r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 is r2 cos theta 2 plus I sin theta 2, where r1 is equals to mod of z1 and r2 is equals to mod of z2, where theta 1 is argument of z1 and theta 2 is the argument of z2, then mod of z1 plus z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू mod of z1 का स्क्वायर प्लस mod of z2 का स्क्वायर प्लस 2 of z1 z2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, बिकॉज z1 इज इक्वल्स टू r1 and z2 is equals to r2. Okay, now come to property number 8, that is if z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर होगा तो z1 का होल स्क्वायर मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 मॉड z2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2.
और वो इक्वल होगा r1² + r2² - 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। सम इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स एंड इक्वेशंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स है और इक्वेशंस है। तो ये रिजल्ट यह है कि अगर डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बी भी z1 है, तो मॉड ऑफ ए बी हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से मॉड ऑफ z1 - z2। वैसे ही सेक्शन फार्मूला से पॉइंट पी z1 which divides the join of segment AB in the ratio of m/n is given by, ये भी important formula है, mz2 + nz1 by m1 + m2, okay। And third is midpoint formula, that is midpoint mz is of the segment AB is given by z = half of z1 + z2, और वो a और b के बीच में m है, मिड पॉइंट है, और 1:1 के फॉर्म में डिवाइड करा, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, z = half of z1 + z2। Now condition for 4a z1, b z2, c z3 and d z4 to represent vertices of a parallelogram। कौन सा कंडीशन होगा तो vertices of a parallelogram रिप्रेजेंट करेगा, ये कंडीशन है। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं जब IIT के क्वेश्चंस कराऊंगा तब देखना, ये क्वेश्चंस IIT में आया हुआ है। कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम फॉर 4 points to of complex number, that is z1 + z3 is equals to z2 + z4। now and rhombus का कंडीशन होगा z1 + z3 is equals to z2 + z4। वैसे ही a pair of two adjacent sides are equal, for instance AD is equals to AB, तब वहाँ पे होगा mod of z4 - z1 is equals to mod of z2 - z1। फिर स्क्वायर का कंडीशन क्या होगा, डायगोनल, पहला कंडीशन हो गया स्क्वायर में डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर, अगर वो बाइसेक्ट करेगा तो वो पैरेललोग्राम की ही तरह हो जाएगा, दैट इज z1 + z3 is equals to z2 + z4, और अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, फॉर इंस्टेंस AD is equals to AB, तो z4 - z1 का मॉड इज इक्वल्स टू z2 - z1 का मॉड, और अगर टू डायगोनल आर इक्वल, दैट इज AC is equals to BD, which implies mod of z3 - z1 is equals to mod of z4 - z2। और फोर्थ रेक्टेंगल में पहला कंडीशन है डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट्स ईच अदर, अगर वो AC और BD बाइसेक्ट करेगा तो वो पैरेललोग्राम की तरह ही हो जाएगा, z1 + z3 इक्वल्स टू z2 + z4, और इफ डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल तो हो जाएगा z3 - z1 का मॉड इज इक्वल्स टू z4 - z2 का होल मॉड, ओके। नाउ फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, जो कि हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक चीज़ में यूज़ होता है इन सब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब एक एक पॉइंट डालकर कहीं कहीं क्वेश्चंस में इंक्लूड कर देता है, और अगर इसकी नॉलेज नहीं हुई तो वो क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं। सो दिस टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टर्म्स को जानना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि ये टर्म्स क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ट्रायंगल, लेट ABC बी अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A z1 B z2 एंड C z3। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, G, सेंट्रॉइड हो गया G of a triangle ABC is the point of concurrence of median of triangle ABC and it's given by z is equals to 1/3 z1 + z2 + z3। ये क्या कहता है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं एक ट्राइंगल के। मीडियंस क्या होता है, वो जो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है अपोजिट साइड पे, उसको मीडियन कहते हैं। तो और वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा सेंट्रॉइड का वो होगा 1/3 z1 + z2 + z3। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन सेंटर। IZ, इन सेंटर को हम डिनोट करते हैं IZ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ ट्राइंगल ABC इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड इज गिवन बाय ZA Z1 B Z2 C Z3। ये देखो इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ, ये टर्मिनोलॉजीज है, A का Z1 लिए हैं, B का Z2 लिए हैं, C का Z1, और A1 ABC छोटा वाला ABC है, A के अपोजिट साइड को A, दैट इज BC को A स्मॉल ए लिए हैं, AC को स्मॉल b, और AB को
ए और ए बी को स्मॉल से लिए हैं, तो यही हमारा इंसेंटर का फॉर्मूला हो जाएगा ए जेड वन प्लस बी जेड टू प्लस सी जेड थ्री बाई ए बी सी. ओके, नाउ कम टू सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर एस जेड से डिनोट करते हैं ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ए बी सी एंड इज गिवन बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है उसके कॉन्करेंस को जो पॉइंट्स पे मिलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर. और ये दिया जाता है फॉर्मूला से, दैट इज जेड टू माइनस जेड थ्री और मल्टीप्लाई इंटू जेड वन का मॉड इज इक्वल्स टू प्लस जेड थ्री माइनस जेड टू का मॉड प्लस जेड वन माइनस जेड थ्री का मॉड बाई जेड वन मॉड जेड टू माइनस जेड थ्री प्लस जेड टू मॉड जेड थ्री माइनस जेड वन प्लस जेड थ्री मॉड जेड वन माइनस जेड टू. ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बट ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, बट यूज़फुल फॉर्मूला है. एक बार देख लो, अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है. ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में. अगर हमको करना हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ जेड वन स्क्वायर जेड वन वन मॉड ऑफ जेड टू स्क्वायर जेड टू वन मॉड ऑफ जेड थ्री स्क्वायर जेड थ्री वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन वन जेड conjugate of z2 1 and conjugate of z3 1. Also z is equals to z1 sin 2a plus z2 sin 2b plus z3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. Okay, now come to orthocenter of a triangle hz. इसको hz से डिनोट करते हैं. orthocenter होगा ऑफ ट्राइंगल abc is the point of concurrence of altitudes of triangle abc and is given by z इज इक्वल्स टू दिस वे. इस एल्टीट्यूड को हम इस तरह देते हैं. एल्टीट्यूड होगा ऑर्थो सेंटर का जो पॉइंट होगा उसको यहाँ से देते हैं. और z इज इक्वल्स टू tan a जेड वन प्लस tan b जेड टू प्लस tan c जेड थ्री बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c. और z इज इक्वल्स टू a sec a जेड वन प्लस b sec b जेड टू plus c sec c z3 by a sec a plus b sec b plus c sec c. Okay, now the De Moivre's theorem, one of the most important topic and concept of this chapter. De Moivre's theorem. इससे भी questions IITs में आए हुए हैं और मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. De Moivre's theorem for integral in x. If n is an integer, then cos theta plus I sin theta to the power n is equals to cos theta n plus I sin theta sin n theta. De Moivre's theorem for rational index. If n is an irrational number, then value of or one of the values of cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta. In fact, if n is equals to p by q, where pq belongs to integer, q is not greater than 0 and pq have no factor in common, q is greater than 0 and pq have no common factor, then cos theta plus I sin theta to the power n and has q distinct values, one of which is cos n theta plus I sin n theta. नोट में डाल के ये है, the value of cos theta plus I sin theta to the power p by q, where pq belongs to integer q is not equals to 0 and HCF of pq is 1 is given by cos p by q 2k pi plus theta plus iota sin p by q 2k pi plus theta, where k is equals to 0 1 2 up to q minus 1. Okay, the cube root of unity, this is also a very important concept. Cube root of unity says that are given by 1 omega square, where omega is equals to cos 2 pi by 3 plus I sin pi by 3. इसका वैल्यू होता है माइनस 1 प्लस 3 iota by 2 minus 1 minus root under 3 iota by 2. Some results, omega क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ओमेगा और ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी minus CA minus AB is given by A plus B omega plus C omega multiplied A plus B omega square plus C omega.
and a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equals to a plus b plus c multiplied by a plus b omega plus c omega square multiply a plus b omega square plus c omega. And eighth is x cube minus x cube plus 1 is equals to x plus 1 x plus omega and x plus omega square. Similarly, ninth is property is a cube plus b cube is equals to a plus b omega a plus b omega square. The cube root of real number a are a to the power 1 by 3 a to the power 1 by 3 omega a to the power 1 by 3 omega square. To obtain cube root of a, we write x cube is equals to a as y cube is equals to 1, where y is equals to x by a to the power 1 by 3. Solution of y cube is equals to 1, which are 1 omega omega square, x is equals to a 1 by 3 a 1 by 3 omega and a 1 by 3 omega square. So this is the so finally we have ended the whole theory of complex number, and now we are ready to solve the IIT's problem or any other entrance exam problem. And I will show you that the concepts which I have taught in this lecture is again and again repeated and asked so many times in entrance exam, and these concepts and the questions based on these concepts are very easy. So thank you. Have a